أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 1 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے اس کورس میں پہلے سپارے کے پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جن میں سورۃ الفاتح، سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں اور ان میں تذکرہ ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے وہ انگوٹھے پر، اور دوسرا اور تیسرا صفحہ جو ہے وہ شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی پر، اور چوتھا اور پانچواں جو ہے وہ آخری 2 انگلیوں پر۔ تو آئیے پہلے صفحے کے اشارات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ اللہ کی تعریف کا تعلق کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد دوسرا اشارہ ہے ہدایت کی دعا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور تیسرا اشارہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہدی للمتقین۔ اور آیت کہاں سے شروع ہوگی؟ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اور چوتھا اشارہ کیا؟ متقیوں کی صفات، اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ اس سے ہے۔ تو ان کو ہم مختصر یوں کہہ سکتے ہیں: تعریف یعنی الحمد، دعا یعنی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت یہ جو ہے ہدی للمتقین سے، اور صفات کیا ہیں؟ والذین یؤمنون۔ تو آئیے یہ ہمارے پہلے صفحے کے 4 اشارے ہیں۔ دیکھیں اس کے 4 کلر ہیں۔ پہلا اشارہ کیا ہے؟ یہ پنک کلر کا، دوسرا اشارہ یلو، تیسرا جو ہے گرین، اور چوتھا کیا ہے؟ بلو کلر سے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا اشارہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف۔ دوسرا کیا ہے؟ ہدایت کی دعا۔ تیسرا اشارہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور چوتھا اشارہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفات۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے پہلے 3 اشارے پڑھ لیے تھے۔ آج ہم چوتھا اشارہ پڑھیں گے، وہ کیا ہے؟ متقیوں کی صفات۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں، آپ میں سے اگر کوئی انہیں پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں ایک نقطہ تھا، وہ چھوٹا سا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جب یہ دیکھیں یہ جو حمزہ یہ ساکن ہے، جب یہ ساکن لفظ آ جاتا ہے واو یا اس کے جو ہے کمزور الفاظ پہ، اس پہ کیا ہے؟ تھوڑا سا رکتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں۔ یؤمنون، اسی طرح ينفقون، یقینون، اور یہ یقیمون، سوری اس میں نہیں ہے، اس میں ہی ہے، یعنی یہ پیش والے لفظ کے بعد اگر ساکن لفظ آ رہا ہے، خاص طور سے حمزہ آ رہا ہے یا کمزور آ رہا ہے، وہاں پہ جھٹکا۔ اسی طرح
यहाँ पे शद आ रही है, जैसे ये वमिम, यानी इसमें शद और उसमें जो है सुकून वाले लफ्ज पे थोड़ा सा वो झटका देते हैं। तो आइए चलते हैं इनके असबाब की तरफ। आज की आयतों में हमें ये बताया गया है कि जो मुफ्लिहून हैं या फलाह पाने वाले हैं उनकी 5 सिफात हैं, यानी मुत्तकीन की 5 सिफात हैं। क्या है? पहली ये कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, दूसरा ये है नमाज कायम करते हैं, तीसरा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, चौथा कुरान मजीद पर और उससे पहले नाजिल करदा आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, और पांचवा ये कि आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो ये 5 सिफात लाने वाले क्या हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें हिदायत और कामयाबी मिलेगी। तो आइए देखते हैं नए अल्फाज कितने हर लाइन में, 2 3 1 2 3, यानी औसतन जो है 3 से ज्यादा नहीं है। क्यों? 6 अल्फाज हम ऑलरेडी QC1 में पढ़ चुके हैं। अब हर लाइन में सतर में 9 होते हैं, तो बाकी 3 है, तो हमारे लिए ये जो है 3 या 3 से कम जो है वो मुश्किल अल्फाज होंगे हर हाल, और उनको हम क्या है फिक्रों की शक्ल में या फ्रेजेस की शक्ल में लाते। तो हर सत्र में तकरीबन 3 नए अल्फाज, और 3 अल्फाज नए सीखने के लिए 3 जो है फिक्रे, और फिक्रों को हल्का सा कलर दिया गया ताकि आपको अंदाजा हो कि कहाँ है, और जहाँ पे फिक्र आएगा उसके हम कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना ये इसमें मसूल है। आज इंशाल्लाह हम आपको ये भी इसके लिए जो है वो जितने अल्फाज हैं 6 होते हैं वो दिखते हैं। अल्लज़ीना जो लोग, युमिनूना, युमिनूना ईमान लाते हैं। ये युमिनूना में रूट लेटर क्या है आप लोग निकालिए। या इलामत मुदारे हटा दी, वाव नून ये जमा की इलामत हटा दी, पीछे क्या रह गया जी? हमजा मीम नून। ओ मीम नून। हमजा मीम नून जो है ये इसके रूट लेटर एक। इसी तरह युकीमूना यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके रूट लेटर निकालिए। काफ या मीम। और युनफिकून ये भी उसी तरह उसी पैटर्न पे है, नून फा काफ। नून फा काफ हो गए। ये रूट लेटर हमने आसानी से निकाले। एक और नई चीज इसमें आई है, वो आया है युमिनूना पेश आ रहा है। जब मुदारे के ऊपर पेश आ रहा हो या माजी के ऊपर पेश आ रहा हो, पहला जो होता है वो क्या हुआ, हम उसे मजहूल समझते हैं। मजहूल की 2 इलामतें, माजी होगा तो फूइला, पहले पे पेश, दूसरे पे जेर, और तीसरे पे जो है क्या है जबर, फूइला। और अगर मुदारे आ रहा है तो उसका वजन होगा फू आला, पहले पे पेश, दूसरे पे जबर, और तीसरे पर जो है फू आला जबर हो। अब यहाँ देखिए, ये जो है ये तो इलामत मुदारे पर आ रहा है, इसके रूट लेटर क्या है, हमजा मीम नून है। तो जब ये हमजा मीम नून है तो ये जो है क्या, ये मजहूली नहीं है। और दूसरी बात है, अगर हम इसे फर्ज कर लेते हैं, ये समझ लें कि या जो है ये पहला हरफ ही है, फू ई ला, वो फू ईला का वजन तो बनेगा नहीं क्योंकि ये माज़ी है। और मुदारे का फिट करें फू आला, तो ये देखें मीम पे फिर फू आला के हिसाब से मीम पे जबर आना चाहिए था, ये जेर आ रहा है। जब ऐसा कोई लफ्ज आए जिस पे फू ईला और फ़आला के वजन माजी और मुदारे के मुताबिक फिट ना बैठ हो, वो मजहूल नहीं। वो क्या कहता है मजीद फी होगा, ये हम आगे किसी में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ ये याद रख लीजिए, आपको एक कुलिया बता दिया मजहूल पहचानने का, कि अगर ये पहला लफ्ज इस पे पेश है और दूसरे लफ्ज के नीचे जेर आए और तीसरे पे जबर हो, माजी का सीगा हो, फिर वो मजहूल। और मुदारे में क्या है, पहले सीगे पर पेश, दूसरे सीगे के नीचे 3 जेर, और तीसरे के ऊपर जबर हो। यहाँ ये चूंकि मुदारे है, मुदारे के हिसाब से ये उस पर फिट नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब है ये मजबूल नहीं। तो युमिनूना ये जो है मुदारे का फेल है, जमा का सीगा है, हमें इतना पता चल गया। यू से पता चल गया गैब का। फिर सर आगे है लफ्ज, मजहूल की समझ नहीं आई। मजहूल की मतलब पहचान जो है ना,
वो इतनी जल्दी समझ में नहीं आई, आप इसको रिपीट करते रहिएगा ताकि हमारे दिमाग में बैठे। सिस्टर इस पे QC2 का आखिरी जो क्लास का सेशन है उसमें पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है। आज मैंने आपको मजहूल का इब्तिदा की है, आपके जहन से ये गुजर जाएगा, कोई फर्क नहीं। इस इंशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता ये क्लासों में आते रहेंगे, जब मजहूल आएगा उसकी पहचान हम वहाँ पे रुक के करेंगे, क्योंकि इसमें इस वक्त कोई मजहूल नहीं है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे छेड़ नहीं, क्योंकि ये मजीद फी है, वो फिर मजीद फी बहुत लंबा होगा, इसलिए हम उसे यहाँ नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे ये पॉइंट करना था कि ये पेश जो आ रहा है ये अहम होता है, सर वो मीनिंग हमें में, एक्सक्यूज मी सर, मीनिंग में आप डिफरेंस बता देंगे? जैसे ये अगर ये मुदारे होता तो क्या मतलब होता, और अगर अब मजहूल है तो क्या मतलब है? मजहूल में ये होता है कि फाइल नहीं होता, यानी उसमें जो करने वाला नहीं होता। मसलन दराबा हम कहते हैं उसने मारा, किसने मारा? उसने मारा। दराबू उन सब ने मारा, किसने मारा? उन सब ने मारा, यानी मारने वाले हमें पता है। दरबता आपने मारा, किसने मारा? आपने मारा, हमें पता है किसने। दरब तू मैंने मारा, मुझे पता है किसने मारा, मैंने मारा। दरब तुम आप सब ने मारा, किसने मारा? आप सब ने मारा। दरबना हमने मारी, इसमें हमें मारने वाले का यानी काम करने वाले का फायदा, मजहूल में पता नहीं होता। अब यही है दूरी बा, वो मारा गया, यानी उसे मार पड़ी, किसने मारा पता नहीं। दूरी तू, दूरी तू वो सब मारे गए, किसने मारा नहीं पता। दुरिप्ता आप मारे गए, मार खाने वाले का तो पता है मफूल का कि किसे पड़ी, किसने मारा ये नहीं पता। दुरित तू मैं मार खाई, मैं मारा गया, मुझे मारा गया, पता नहीं किसने मारा। दुरिप तुम सबको मार पड़ी, किसने मारा नहीं पता। दुरिप ना हम सब मार पड़ गए। अब फर्क पता चल गया सिस्टर कैसरा? जी थैंक यू सो मच नहीं जी, हाँ? बहुत अच्छी मतलब तरह पता लगा। मजहूल का ये फर्क है कि तर्जमे के अंदर जो है, हम जब तर्जमा करेंगे फिर इस तरह करेंगे कि मजहूल जब आएगा उसमें फाइल का जिक्र नहीं होगा तर्जमे में कि किया किसने, और बाकियों में हम तर्जमे में फौरन पहचान लेंगे कि मारने वाला वो है, वो जमा है, आप हैं, मैं हूँ, आप सब हैं, या हम हैं, या जो भी है, फाइल का हमें पता चलेगा काम कौन कर रहा है। ये फर्क है, इसलिए मजहूल को पहचानना, मजहूल हमने इसी QC2 के अंदर ही पढ़ना है, इसलिए मैंने अब आज आपकी इब्तिदा कर दी। ऐसा ऐसा वो अल्फाज आएंगे, जब वो आएंगे जहां जाएंगे वहां फिर वो मैं आपको उसका पॉइंट करूंगा या आपको उसका एक्स्ट्रा लिखेंगे। आर यू रेडी टू गो अहेड? या अभी जी जी इस पे जज़ाक एक दफा वो जो आप माजी और मुजारे में जो हरकत बताई है वो उधर एक दफा रिपीट कर दें। फूइला माजी में पहले पे पेश, दूसरे पे जेर, तीसरे पे जबर। फूआला मुदारे में पहले पे पेश, दूसरे पे जबर, तीसरे पे जबर। ये इंशाल्लाह कल परसों की उसमें मैं आपको स्लाइड डाल दूंगा। और चलिए सर आइए इसका तब अमर भी नहीं होता ना, इसका अमर नहीं होता ना मजहूल का? आप सही फरमा रही हैं, मजहूल का अमर नहीं होता। चलिए आइए तर्जमे की तरफ से। अल्लाह जीना जो लोग युमिनना ईमान लाते हैं, मुदारे का सिगा है ना, लाते हैं, किस पे? बिल गैब, भी हरफ है, अलिफ लाम जो है उससे पता चला ये क्या इसम है, अल गैब गैब पर। वाह और युकीमुना क्या है? मुदारे है, आप देख रहे हैं इलामत मुदारे गैब की आ गई, जमा का सिगा आ गया, तो क्या होगा? जमा मुजक्कर गायब का सिगा है, यानी वो कायम करते हैं। ये हमने पढ़ा था काम, कद कामत सलाह, कामा वो यही लफ्ज है, उसी से ये निकला कामा यकूमु। तो ये जो है यकीमुना वो कायम करते हैं क्या? अस्सलात, अलिफ लाम से पता चल रहा है इसम है, बोलते से पता चल रहा है मुअन्नस है, और वाहिद है, और क्या है? मारफा, क्यों? अलिफ लाम नुमाज। वाह और मिम्मा, ये जो मिम्मा है ना, इसमें लगता है सारे पॉइंट डिस्कशन वाले होंगे, चलो इसे फिर किसी और वक्त। वह मीन माँ, ये असल में मिन और माँ का मजमूआ है, मिन और माँ। तो मिन और माँ से मिलके लफ्ज बनता है मिम्मा, इसका मतलब है उससे जो, वाह और मिम्मा उससे जो। रज़कना, रज़कना, रज़कना हमने रिज़्क दिया,
उनको हमने उन्हें रिज़्क़ दिया, हम जो है ज़मीर है इस समय युनफिकून, युनफिकून, युनफिकून क्या है? ये मुदारे या इलामत से गैब जमा का सीगा, वहाँ से पता चला क्या है? नफ़का, ये इसके रूट लेते हैं नफ़का, युनफिकून। ये तीनों लफ्ज़ जो मिनुना, युकीमुना सलाता, युनफिकूना और आगे भी दो आएंगे, ये सारे क्या है? मजीद फी के हैं जो किसी थे। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें आने वाले नए अल्फाज के लिए फिक्रे देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला है युमिनूना बिल गैब, युमिनूना बिल गैब, युमिनूना बिल गैब, युमिनूना बिल गैब, ईमान लाते हैं गैब पर। और अगला नया है युकीमूना, तो उसके लिए भी फिक्रा लेंगे, व युकीमूना सलात, व युकीमूना सलात, वयुकीमून सलात, और कायम करते हैं नमाज। और अगला रज़कना और मिम्मा नए हैं, तो इसलिए जो है R5S10 लॉर्ड करेंगे, व मिम्मा रज़कनाहुम, व मिम्मा रज़कनाहुम, व मिम्मा रज़कनाहुम, और उससे जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है। अगला युनफिकून भी नया लफ्ज़ है, उसे भी R5S10 लॉर्ड कर दिए। युनफिकून, 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 वो खर्च करते हैं। नफक का मतलब है खर्च। इसके एक और मानी भी होते हैं। नफक कहते हैं सुरंग को, खंदक को। जब आप सऊदीया जाते हैं ना, जब वो गाड़ियां किसी सुरंग से गुजरती हैं तो उस पर लिखा होता है नफक नंबर इतना, नफक नंबर इतना। नफक के एक मानी होता है सुरंग या जो है वो खंदक। तो आइए, पहली सिफत का जो है जिक्र आ गया। कौन से लोग? युमिनून बिल गैब। पहली से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे हवासे खमसा महदूद हैं, इसलिए पूरी हकीकत को समझना और जानना हमारे लिए मुश्किल होता है। मुत्तकीन की पहली सिफत है उनको गैब पर ईमान। देखिए, आज के दौर पे गैब को समझना बहुत आसान है। मसलन मैं जब इस कमरे में बैठ रहा हूँ, इस कमरे के अंदर जो है लाखों की तादाद में सिग्नल आ रहे हैं, मुख्तलिफ मोबाइल के आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो टीवी के आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वायरलेस के आ रहे हैं, मुख्तलिफ कम्युनिकेशन सिस्टम जो दुनिया के चल रहे हैं, उनके सबके आ रहे हैं इस कमरे में। मैं नहीं सुन सकता। अगर वो जिन पे इस वक्त कॉल हो रही है वो सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ हो, तो वो सारे शोर कर रहे होंगे इस कमरे में। इसका मतलब है शुआएं नजर नहीं आती हैं, लेकिन हमें यकीन है पक्का कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है। एक ही वक्त में लाखों लोग जो है फोन पे बात कर रहे हैं दुनिया जहान के, और उनके सिग्नल पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जहां जहां वो मखसूस नंबर के मोबाइल हैं, मखसूस नंबर के आलात हैं, सिर्फ उन पे वो नजर आता है। मतलब अगर यहाँ पे टीवी लगा है मेरे कमरे में और उसका कनेक्शन है और उसके ऊपर वो सिग्नल है, तो मुझे दुनिया जहान की चीजें नजर आ रही। मेरे पास नहीं है, नहीं नजर आ रही। लेकिन मेरे ये कहने से कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं कहूँ कि नहीं है, नहीं, हमारे पक्का यकीन। इसी तरह ये हाल में है। ये जो दुनिया है इसके गिर्द एक बहुत बड़ी जो है गैब की दुनिया। बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। मैं जरासीम हर जगह मौजूद है, वायरस से हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब बीमार होते हैं तो हमें यकीन होता है हाँ जी ये जो है देखो इन्फेक्शन होगी, किसी जरासीम ने या बीमारी ने, इस वायरस ने अटैक किया। उस वक्त यकीन हो जाता है। क्यों? हमें पता है वबा फैल गया तो सबको पता है जी इस चीज की वबा, सबको इन्फ्लुएंजा हो रहा है, सब जो है वो इन्फ्लुएंजा के शिकार है जी, इन्फ्लुएंजा। तो कहने का मतलब है गैब पर ईमान लाने का मतलब ये है कि वो अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर, जन्नत और जहन्नम, अल्लाह से मुलाकात पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। इसे कहा आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास। ये हमारे ईमान मुजम्मल मुफस्सल जो है वो उसका पूरा हिस्सा है। इस सब चीजों पर आपने ईमान लाना है। जैसे आप मेरे कहने पे ये सिग्नल्स पे ईमान लाते हैं, क्यों? आपका तजर्बा है इसलिए आप मेरी बात। बीमारियों के, जरासीमों पे, वायरसों पर ईमान लाते हैं, क्यों? आप दुनिया में देख रहे हैं, आपको इसका तजर्बा हो। इसी तरह इन चीजों पे आप नहीं देख रहे, लेकिन इनडायरेक्टली हमें इन सब का एहसास होता है। एक छोटी सी चीज खुद ब खुद नहीं बनती। खुदा ये इतनी बड़ी कायनात खुद बन गई, ये बता रही है कोई है इसको बनाने वाला, कोई चला। अगर इसे कोई चला ना रहा होता, कोई इस पे कंट्रोल ना होता, तो ये धर्म भ्रम हो जाती। ऐसा नहीं है।
تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، اللہ کے میسج آ رہے ہیں، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق حالات واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ہم روز دیکھ رہے ہو رہے ہیں، اور اس لیے ہمیں وہ کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت آ گئی، قائم کرتے ہیں نماز، یعنی دراصل نماز قائم کرنا تقویٰ کو بڑھاتا ہے اور غیب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ کچھ مسلمانوں یا لیڈروں کو دیکھیں گے جو قرآن مجید کی آیات کی عجیب و غریب تشریح کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھ لیے، اس لیے ان پر ہدایت کی راہ نہیں کھلتی، وہ اپنی مرضی کے معنی جو ہے اس میں تلاش کر کے اپنا مفہوم اور اپنا جو ہے وہ سیدھا، اور پھر کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق ہے وہ خرچ کر۔ تیسری چیز، وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے بلکہ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں، مثلا خود پر، اپنے والدین پر، بیوی بچوں اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، مسجد، مدارس، دین، تعلیم، دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں، یعنی نیک کاموں پہ کرتے ہیں، لو بہبود کے کاموں پہ، سماجی معاشرتی جو ہے بہلائی اور فلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جیب کا جو ہے ہدایت کا راستہ جیب سے اوپر، متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کا تحفہ ہے، اسی لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کو ایک بار پلیز دہرا لیجیے۔ بسم اللہ۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، بی اور ما بی کی معنی ساتھ یا پر، ما اس یعنی اس پر جو، انزیلا، ہاں جی یہ آ گیا، توجہ کیجئے، یہ مجہول آ گئے ہیں صاحب، انزیلا، انزیلا، کیا یہ مجہول ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا مجہول ہے یا نہیں؟ جی جو آپ نے نشانی بتائی تھی کہ نازل کیا گیا، یعنی کس کی طرف سے نازل کیا، یہ نہیں پتہ چل رہا، تو اس کے مطابق شاید ہے مجہول۔ ہاں جی بردر کریم۔ انزلہ، انزلہ نازل کیا گیا، من قبل، آپ سے، اس سے جوڑ کے ملائیں گے تو پھر مجہول نہیں ہوگا، ادروائز مجہول کنسیڈر کریں گے اگر آگے رننگ میں جائیں۔ یہ اگر مجہول نہیں ہے، انزلہ یہ من مجہول، قبل اس سے ملائیں گے یہ تو تب چار حرفی، یہ چار حرفی لفظ ہے۔ نزلہ تین حرفی لفظ ہوتا ہے، نزلہ میں جو ہے نزلہ اور نزلہ اگر آئے گا تو تب وہ مجہول ہوگا۔ یہ چار حرفی لفظ ہے، چار حرفی لفظ جو ہے اس میں مجہول کی علامت مختلف ہوتی ہے۔ اس وقت یہ جو ہے چار حرفی ہے، یہ بھی پیش آیا ہے، پیش کی وجہ سے میں نے توجہ دلائی کہ یہ چار حرفی یا مزید فی کے جتنے ہوتے ہیں اس میں پیش ہوتا ہے۔ تو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، اور بالآخرت بعد کے میں نے ساتھ یا پر، الآخرہ آخرہ، ہاں الآخرہ کو دیکھ لیجئے، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، معرفہ ہے، گول تا سے پتہ چلا مؤنث ہے، اور کیا ہے، واحد ہے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے یعنی اسم ہے، یؤمنون یہ جو ہے کیا ہے، فعل ہے، یؤمنون فعل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نئے الفاظ کی طرف۔ انزلہ نیا ہے تو آئیے R5 اسٹینڈ آؤٹ کیجیے۔ انزلہ الیک، انزلہ الیک، انزلہ الیک، نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ قبلک جو ہے وہ پھر ہے، من قبلک، من قبلک، من قبلک، آپ سے پہلے۔ ہاں یہاں پہ ایک تھی توجہ، من تو ہے حرف انفی بی کی طرح جا رہا، قبلک کا جو ہے وہ تو ضمیر ہوں گے، قبلک یہ کیا ہے جی، اسم فعل حرف میں سے کیا ہوگا؟ یہ فعل
یہ فعل نہیں ہے جی، پیچھے دو ہی رہ گئے. اسم ہے شاید. شاید نہیں، پکی بات ہے یہ اسم ہے. ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، ظرف، ظرف مکان، ظرف زمان، یہ سارے جو ہے ظرف زمان ظرف مکان کیا ہے، اسم ہوتے ہیں. جیسے فوقا، تحتا، امامہ، خلفا، ورا، قبلکا، اور جو ہے یہ جو ہے کیا ہے، یہ سارے ظرف ہیں. قبلک جو ہے یہ اسم ہے. چلیے یہ اچھا ہو گیا، اس سے یاد آ گیا. تو آپ کے کسی لیسن میں میں وہ ظرف مکان اور ظرف زمان کی سلائڈ ڈال دوں گا تاکہ ہمیں یہ اس میں. جی سسٹر ناہید، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ انزلہ کے اگر ہم ٹکڑے کریں جیسے تو او الگ اور نزلہ الگ ہو جائے گا. نہیں، وہ بذات خود کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آ کے جڑتا ہو. وہ امر کے اندر لفظ جڑتا ہے جب پیش والا وہ ہوتا ہے باب نصرہ یا جو ہے باب کرما، اس میں پیش آ رہے تھے ان میں آتا ہے، بالکل میں مانتا ہوں. لیکن وہ ہوتا ہے، دیکھیں ابھی غور سے دیکھیے گا، 3 حرفی میں بنا، نزل ینزلون، نزل. امر کیا بنا؟ نزل. انزل یا انزل نہیں بنا. نزل ینزل، ینزل کا یا ہٹایا، نزل حمزہ کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ثلاثی مجرد کا تو یہ ہے نہیں. اگر ہوتا تو اگر امر بھی ہوتا تو امر میں جو ہے یہ ینزل سے یا کو جب ہٹاتے ہیں تو نون کے اوپر جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، تو اس لیے انزل وہ اس امر کے حساب میں نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے اتار، اتار یعنی امر ہوتا اتار. یہ اتار نہیں ہے، اتارا ماضی کا صیغہ ہے یہ. تو اس کو پھر کسی لمحے کے لیے چھوڑ دیجئے، ابھی فی الحال یہ اس پہ توجہ دیجیے. ابھی ہم قبل میں پھنسے ہوئے. قبل کا کوئی سمجھ آیا کسی کو؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ بس یاد رکھیے کہ یہ اسم ہے، یہ ظرف زمان ہے. جیسے آما، ورا، فوقا، تحتا، قبل، اور اسی طرح اس کے جو ہے اور بھی ہیں. تو وہ اس میں سے یہ ہے قبل کی سمجھ میں اور بالآخرت، اور آخرت ہم یوقنون وہ ایمان لاتے ہیں. تو آئیے نیا لفظ جو ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا، ہاں اسے ہم نے دہرانا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ سب ایمان رکھتے ہیں. یقین یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقین، یوقنون اسی سے بنا ہوا ہے. تو آئیے اس کی شرح لیتے ہیں. چوتھی صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی پچھلی کتابوں تورات، انجیل وغیرہ اور قرآن اور حدیث پر ایمان لانا ایمان کا یہ حصہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور ان کے ماننے والوں کے لیے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. جیسے قادیانی ایمپٹی وغیرہ. کیوں؟ یہ تھا من قبل کا، یہ نہیں تھا بعد. قبل کا الٹ ہوتا ہے بعد. بعد نہیں کہا کہ تیرے بعد بھی جو کتاب آئے گی اس پہ بھی مان لا. اس سے پہلے تورات میں، زبور میں یہ جگہ جگہ لکھا ہے کہ اس کے بعد بھی جو میرا نبی آئے گا یا میرا وہ آئے گا، ایک خاص رسول آئے گا، نبی آئے گا، اس کی کتاب ہے، اس پہ تم نے ایمان لانا ہے، اس رسول پہ ایمان لانا ہے. اگر آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو قرآن اس کو مینشن کرتا، جیسے تورات نے مینشن کیا، جیسے زبور نے مینشن کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اسی طرح اگر کسی نے آنا ہوتا وہ آپ کے جو کتاب آئی اس میں بھی لکھے گا. لیکن یہ کتابیں کہتے ہیں من قبل کا، اس پہ یقین لو جو آپ سے پہلے، آپ کے بعد والی نہیں. اگر ہوتی تو یہاں مینشن ہوتی. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد جو آپ کے بعد نازل ہو. بعد کا لفظ نہیں ہے، قبل کا ہے، یعنی آپ سے پہلے. یہ ایک بہت ہی واضح جو ہے وہ ہے جو یہ اس عقیدے اور اس کو عمل کو جو یہ مختلف طبقے رکھتے ہیں قادیانی احمدی کے، جی آپ کے بعد بھی رسول ہے، یہ نبی ہے، یہ آیا ہے اور اس کا نام احمد ہے اور اس کو یہ سب کا رستہ بول. وبالآخرت، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ آخرت پر مضبوط ایمان، ایمان کا یہ حصہ نمازوں کو قائم کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانے کے لیے ضرور.
علم please. یہ اگلی آیت آگے کے اس میں ہے لیسن میں، لیکن چونکہ اس پہ وہ پورا ہی ہو رہا ہے مضمون تو اس لیے اسے بھی دیکھتے ہیں. بسم اللہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک وہی لوگ ہیں علی ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ هم المفلحون فلاح پانے والے. تو اس میں نیا لفظ جو ہے مفلحون ہے، تو آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. من ربہم کا مطلب ہے ایسے لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والا سب سے اہم تحفہ ہے، اسی لیے ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگتے رہنے چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. یعنی اللہ نے ہمارے لیے لازم کر دی ہے یہ دعا کہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں، دن میں 5 دفعہ جو ہم جا کے اللہ سے یہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط. متقین دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. جو کوئی ان 5 صفات میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ ہدایت حاصل کرے گا اور اعلیٰ کامیاب حاصل کرے گا. علم اس حصے کو روکیے. اس سسٹر ناہید آپ نے پھر ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مفلحون تو ہم 1 میں پڑھ چکے ہیں نا، حیا علی الفلاح جی آسان میں آتا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا، فلاح پانے والے. تو آئیے اسباق اور دعا پلان کی طرف چلتے ہیں. ہمیں کیا اس سے اسباق ملتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ متقین کی 5 صفتیں ہیں. کون سی؟ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید پر اور اس سے پہلے جو ہے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ 5 صفات والوں کو جو ہدایت ملے گی اس کا. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اے اللہ، مطلوبہ عادات کو فروغ دینے میں میری مدد فرما. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریت ربنا وتقبل دعا. یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہم نماز میں ربنا آتینا کی جگہ یہ بھی پڑھتے ہوتے. تو آگے ہے آسان. انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ کے راستے میں وقت صرف کرنے کا پلان بناؤں گا یا بناؤں گا. آئیے اسماء افعال دیکھتے ہیں. صلوات واحد ہے، صلوات اس کی جمع ہوتی ہے، مفلح واحد ہے، مفلحون مفلحین اس کی جمع ہے. آئیے اس میں 3 حرفی صحت مند افعال میں دیکھیں. ایک ہی آیا ہے رزقا یرزقو ارزق رازق مرزوق رزق. اس کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ میں سے اگر کوئی سے ٹیبل کو کرانا چاہیے. رزقا اس نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا، رزقتا آپ نے رزق دیا، رزقتو میں نے رزق دیا، رزقتم آپ سب نے رزق دیا، رزقنا ہم سب نے رزق دیا، رزقت اس عورت نے رزق دیا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، یرزقونا وہ سب رزق دیتے ہیں، ترزقو آپ رزق دیتے ہیں، ارزقو میں رزق دیتا ہوں، ترزقونا آپ سب رزق دیتے ہیں، نرزقو ہم سب رزق دیتے ہیں، ترزقو وہ عورت رزق دیتی ہے، ارزق رزق دے، ارزقو رزق دو، لا ترزق مت رزق دے، لا ترزقو مت رزق دو، رازقن رزق دینے والا، مرزوقن جس کو رزق دیا گیا، رزقن رزق دینا. جی سسٹر کیسر آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کرا دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا، رزقتا آپ نے رزق دیا، رزقتو میں نے رزق دیا، رزقتم آپ سب نے رزق دیا، رزقنا ہم سب نے رزق دیا، رزقت اس عورت نے رزق دیا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے، یرزقونا وہ سب رزق دیتے ہیں، ترزقو آپ رزق دیتے ہیں، ارزقو میں رزق دیتی ہوں، ترزقونا آپ سب رزق دیتے ہیں، نرزقو ہم سب جی
अर्जुक है, उर्जुकू नहीं है। जब आप अच्छा, उर्जुकू sorry. कहेंगे वो अमर बन जाएगा। जी 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 बिल्कुल। अर्जुकू मैं रिस्क देती हूँ, तरजुकूना आप सब रिस्क देते हैं, नरजुकू हम सब रिस्क देते हैं, तरजुकू वो औरत रिस्क देती है, उर्जुक रिस्क दे, हाँ, ये दूसरी उर्जुकू जगह पे उर्जुक। रिस्क दो, ला तजरुक मत रिस्क दे, ला तरजुकू मत रिस्क दो, ला राजिकुन तरजुक, काफ साकिन है, ला तरजुक, जी जी ला तरजुक, ला तरजुकू। ला यानी ये अमर तरजुकू का आखिरी लफ्ज साकिन होता है, उर्जुक, उर्जुकू, ला तरजुक, ला तरजुक। जी चलिए। सही सही। राजिकुन रिस्क देने वाला, मरजूकुन जिसको रिस्क दिया गया, रिजकुन रिस्क देना। जी सिस्टर नाहिद, आपने हैंड रेज किया, क्या टेबल कराना चाहती हैं तो कराइए। जी जरूर कराती हूँ। फेल माजी सबसे पहले, रजा का उसने रिस्क दिया, रजा को उन सब ने रिस्क दिया, रजकता आपने रिस्क दिया, रजकतु मैंने रिस्क दिया, रजकतुम आप सब ने रिस्क दिया, रजकना हम सब ने रिस्क दिया, रजकत उस औरत ने रिस्क दिया। फेल मुजारे, यर्जुकु वो रिस्क देता है या देगा, यर्जुकूना वो सब रिस्क देते हैं या देंगे, तरजुकू आप रिस्क देते हैं या देंगे, अर्जुक अर्जुकू मैं रिस्क देता हूँ या दूंगा, तरजुकूना आप सब रिस्क देते हैं या देंगे, नरजुकू सब रिस्क देते हैं या देंगे, हिया तरजुकू वो औरत रिस्क देती है या देगी। फेल अमर, उर्जुक और फेल अमर जमा जो होती है, उर्जुकू रिस्क दो, ला तरजुकू मत रिस्क दे, ला तरजुकू ला तरजुक मत रिस्क दे, ला तरजुकू मत रिस्क दो, राज़िकुन रिस्क देने वाला, मरजूकुन जिसको रिस्क दिया गया, रज़ाकुन रिस्क देना, रिज़्कुन जेर के साथ है, रिज़्कुन रिज़्क देना। रिस्कुन अच्छा रिस्क ये देना। देखें, आज सिर्फ माजी से हम शुरू करते हैं, ऐसा ऐसा जब आप माजी में महारत कर लेंगे फिर मुदारे का शुरू करेंगे। किसी रजा का ये क्या है, एक्टिव सेहतमंद है, वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। अब अगर मैं क्या कहूँ, रूजी को, रजा का ये है ना, रूजी को ये ऐसी हो जाएगी, रूजी को वो रिस्क दिया जाता है, रूजी रूजी का वो रिस्क दिया जाता है, रूजी को वो रिस्क दिए जाते हैं, रुजिकता आप रिस्क दिए जाते हैं, रुजिक तू मैं रिस्क दिया जाता हूँ, रुजिक तुम आप सब रिस्क दिए जाते हैं, रुजिक ना हम सब रिस्क दिए जाते हैं, रुजिकत वो औरत है रिस्क दी जाती। ये होता है मजबूर। यानी ये रजा का क्या है, 3 जबर है, जब ये पहले पे पेश ले आए दूसरे पर जेर ले आए तो ये क्या बनेगा, सीका। जमा भी इसी तरह क्या होगा, रूजीकू। और तीसरा क्या होगा, रूजिकता, यानी पहले पे पेश दूसरे पे जेर ले आए, रूजिकतु पहले पे पेश दूसरे पे जेर, रूजिकतुम आप सब रिज्क दिए जाते हैं, रूजिकना पहले पे पेश दूसरे पे जेर, और रूजिकत। अब ये फर्क पता चल गया, मजहूल और जो है वो मारूफ, मारूफ कहते हैं, एक्टिव को कहते हैं मारूफ, यानी जाना पहचाना, और मजहूल जिसका पता ना हो, गायब। तो रजा का उसने रिस्क दिया, रूजी को वो रिस्क दिया जाता है, रूजी को वो सब रिस्क दिए जाते हैं, रूजी को वो सब रजा को वो सब रिस्क देते हैं, रूजी को वो सब रिस्क दिए जाते हैं, रजकता आपने रिस्क दिया, रजक तू आप रिस्क दिए जाते हैं, रजक ये क्या है, रजक तू मैं रिस्क देता हूँ, रूजी तू मैं रिस्क दिया जाता हूँ, रुजिक तुम आप सब रिजक देते हैं, रजक तुम आप सब रिजक देते, रुजिक तुम आप सब रिस्क दिए जाते हैं, रजक ना हम रिस्क देते हैं, रुजिक ना हम सब रिस्क। ये थोड़ा चले, ये नया है, 1-2 दिन जब इस तरह कर लेंगे तो आप रवा हो जाएंगे, आपको मजहूल की पहचान अच्छी तरह हो जाएगी। चले फिलहाल अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह
आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 1 इशारा डी की क्लास में आज हम काला का जो है टेबल पढ़ेंगे। काला जो है और काना ये दोनों जो है बहुत ज्यादा आते हैं कुरान में भी और हदीसों में भी, तो इसलिए जो है इस पे जो है थोड़ी तवज्जो रखिएगा। ये देखिए 1750 या 15 बार जो है याद। कमजोर हरफ हमें पता है वाव या अलिफ किसी फेल में आ जाए जैसे वा, तो वो भी कमजोर। और 4 सेहतमंद कौन से हैं? अगर कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी नसरा, वरना मार पड़ेगी दराबा। इसलिए सुन लो सब। फतहा नसरा दराबा समेत सेहतमंद थे। तो जिसमें जो है वाव या अलिफ आ जाए वो फेल कमजोर था, जैसे वहाबा, वादा, काला, ज्यादा। कमजोर अफाल के बारे में आपने 3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, ये जो है फतहा नसरा दराबा समिया के पैटर्न स्टाइल पे आते हैं। दूसरी बात, ये थक जाते हैं कमजोर तो गायब हो जाते हैं या फिर एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हमें भी इनका सबक लेने। मसलन वाव थकता है तो उसकी जगह या फिर अलिफ आ जाता है। अगर ना आए तो वाव गायब भी हो जाता है। या की जगह जो है वाव या अलिफ आते हैं, अगर ना आए तो या गायब हो जाता है। और अलिफ भी यही काम। हमजा इनका साथी है, इनका साथ देता है, इसलिए इसको इनके दरमियान में रख दिया, अगरचे वो सेहतमंद है। उसके बाद अब तीसरी बात ये याद रखिए, अगर आप माजी का फेल देखें और उसमें आपको कमजोर हरफ जो है अलिफ नजर आए तो समझ जाए। क्या समझ जाए? ये बदली हुई हालत है जो असल में वाव या फिर या है, जो बदल कर अलिफ नजर आ रही है। मसलन काला में अलिफ जो नजर आ रहा है ये अलिफ नहीं है, ये असल में वाव की जगह है। दा में जो अलिफ है ये अलिफ नहीं है, ये वाव है जो वाव की जगह पे है। या की मिसालें देखिए, कादा में भी अलिफ है लेकिन ये क्या है, या की जगह पे आया है। ज्यादा में जो अलिफ है या। ये कैसे पता चलता है? रूट लेटर जब हम डिक्शनरी से देखते हैं। मसलन काला के जब हम रूट लेटर देखते हैं वहां लिखा है का वाव अलिफ, इसका मतलब है अलिफ वाव की जगह। दा के रूट लेटर जब हम देखते हैं वो लिखा है दा एंड वाव, इसका मतलब है यहाँ वाव जो है अलिफ जो है वाव की जगह। इसी तरह कादा के रूट लेटर देखें, काफ या दाल होते हैं डिक्शनरी में, तो इसका मतलब है यहाँ पे अलिफ या की जगह है। और इसी तरह ज्यादा में जो है जा या और दाल रूट लेटर है, जिसे पता चलता है अलिफ क्या है, ज्यादा। अब आपको कैसे पता चल रहा है? आज आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल जाए काला में जो है काफ वाव लाम है, दा में दाल एंड वाव है, कादा में काफ या दाल है, ज्यादा में जा या दाल। तो आइए, ये हमारा है सेहतमंद अफाल फतहा नसरा दराबा सामिया। और फिर उसके बाद हमने कमजोर के लिए 3 जुमले कहे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ को हदायत की दा। जी, अब आप में से कौन दोहराएगा इसे? दोहराइए प्लीज। जी दोहराएं। सेहतमंद अफाल फतहा नसरा दरबा समिया। अल्लाह ने देने का वादा किया है, देने से वहाबा, वादा से वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा से काला ज्यादा दूंगा ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दुआ से दआ, हिदायत से हदा। जी सिस्टर नाहिद, आपसे मैं ये सवाल करूंगा टेबल कराने की बजाय, ये बताइए इसमें कोई ऐसा कमजोर फेल आ रहा है जिसमें अलिफ हो? जी सर, इसमें काला है, दा है, काला है, तो इसमें ये अलिफ किसकी जगह आ रहा है? ये आ रहा है वाव की जगह पे। और कोई नजर आया? जी ज्यादा भी कमजोर है, इसमें ये किसकी जगह आया? ये भी ये की जगह आया ना, ज ये य की दाल जगह बनता है। है। और हदा भी कमजोर है और वो तो वहाबा खैर भी हदा का तो कमजोर है। या खड़ा है, लेकिन दा की बात करें, अलिफ की बात हो रही है। जी जी जी, ओके, हदा ये भी कमजोर है। दा 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 की बात कीजिए, दा में जो अलिफ है ये किसकी जगह आ रहा है? ये है हा, ये भी ये की जगह ही आ रहा है, लग तो यही रहा, हा दाल और ये है। मैं दा की बात कर रहा हूँ, आपने 3 दफा हदा को रिपीट कर दिया, दा की बात ही नहीं करी। दुआ जो लिखी हुई है ये दा। अच्छा, मैं इसमें मैं तो अलिफ ढूंढ रहा हूँ, अलिफ वाले लफ्ज चूंकि मैंने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ाई, मैं तो वो जी, कोटे कर इसमें रहा हूँ। दा तो दा ही रहेगा, एन आयन भी आयन ही रहेगा, लेकिन अलिफ जो है वो ये है एक्चुअली। ये नहीं है। वाह, आह जी अब फिर इस आप बार मैं आइंदा बताइए। मैं ये भी पूछा करूँ, ठीक है ना जी? ठीक,
वहाबा में रूट लेटर क्या है? वाओ वाबा। और जी वादा में क्या है रूट लेटर? वाओ एंड दा। काला में रूट ठीक। लेटर क्या है? काफ वाव और लाम। ठीक। और दा में रूट लेटर क्या है? दाल ऐन और या। वाओ। दाल ऐन और वाव। हाँ, ये दोनों पहले शुरू में यही आते हैं, काला और दा, फिर जो है कादा और ज्यादा आते हैं। सी अच्छा 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 अच्छा। ये देखिए, ये 3 नंबर सर पे आ आपने जाए, हमको आखिरी सही लाइन यूज में आ किया जाए। था। 3 नंबर पे हम कहते हैं काला और दा की बात करते हैं। हम पहले काला और दा की बात करते हैं, दोनों में जो है अलिफ वाव की जगह है। फिर हम कादा और ज्यादा की बात करते हैं, जिसमें दोनों में अलिफ जो है या की जगह आई सी, ठीक है जी, थैंक यू। है। अब जब हम यहाँ आएंगे, काला और दा ये दोनों क्या है? ये वो है जो शुरू में दोनों हमने रूट लेटर ढूंढे थे, इन दोनों में ये अलिफ जो है वाव की जगह है। फिर हमने ज्यादा और कादा था, कादा यहाँ नहीं है, लिहाजा ज्यादा जो है वो क्या है? या की जगह है। चलिए, काला। हाँ जी, काला साहब आ गए। बताइए, सेहतमंद है या कमजोर है? कमजोर। कमजोर। कमजोर है। क्यों? कमजोर है रफा जी ये तो, अलिफ क्यों अलिफ कमजोर है? की वजह। क्योंकि और ये अलिफ दरमियान में। काफ ये वाव असली और आएगा लाम इसकी है, जगह। काला के रूट लेटर इसके क्या है? रूट वर्ड्स भी काफ वाव और लाम है। हाँ, वाव लाम है। ये असल में अलिफ नहीं है, ये वाव है। अब आपने पक्का कर। कुल कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद हम पढ़ते हैं ना। अच्छा, काला उसने कहा, कालू हम सबने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतुम मैंने कहा, कुलतुम आप सबने कहा, कुलना हम सबने कहा, काला सॉरी। अब ये देखिए, ये जो माजी का आ गया, मैं कहता हूँ नहीं जी, इसका जो है हम क्या बनाएंगे? चले अभी छोड़ दें, अब तो और चले माजी का टेबल तो करा देना। शुरू हो जाए जी, 2 बंदे तो आ गए जी। सिस्टर नाहिद आप शुरू हो जाए, फिर हामिद भाई की बारी। जी, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतु मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कालत उस औरत ने कहा। जी ब्रदर हामिद। हामिद भाई आपने हैंड रेज किया, टेबल कराइए। लगता है नमाज पढ़ने चले गए। चले कराएं कराएं, अभी आप अनम्यूट हुए थे। जी सर। काला, कालू, कालता, कालतो, कालतुम, आज तो नया टेबल इजाद हो। सर मुझे उसका जरा समझ में आया सर। हमने जैसे मैंने लिखा था फाला का, उसको सामने समझा। अभी आप पिछला सर लगाएंगे सर स्लाइड सर, वहाबा का स्लाइड सर तो ने लगी लिखा है हुई है। उसके सर, नहीं वहाबा नहीं, वाला जब स्लाइड मैं लगी। टेबल रखा सर, सर मुझे समझ में नहीं आया सर वहाबा वाला सर। काला उसने कहा, वाव अलिफ लगाया, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुल ना हम सब ने कहा, काला हुसन। अब दोहराइए। चले टाइम जा रहा है, तो फिर कमी से ही। चले आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल देख, हल यकूलू क्या वो कहता है? तारे यकूल, हल नाम यकूलूना जमा आ गया तो नाम यकूलून हो गया। हल तकूलू क्या आप कहते हैं? तो अब तकूलू जवाब में नहीं आएगा, क्या आएगा? अकूलू। नाम अकूलू मैं कहता हूँ। हल यकूल तकूलूना क्या आप सब कहते हैं? अब क्या होगा? नाम यकूलू। आइए, हल काला खैरा क्या वो अच्छी बात कहता है? काला खैरा जी हाँ, वो अच्छी बात कहता है। हल कालू खैरा क्या वो सब अच्छी बात कहते हैं? माजी में नाम कालू खैरा। हल कुलता खैरा क्या आप अच्छी बात कहते हो? हाँ, नाम नाम तो कुलतू, कुलता से कुलतू हो गया। नाम कुलतुम, सर ये कुलतुम कहते हो तो नहीं ना होगा, उसने अच्छी बात कही, माजी की बात जी हो रही है माजी है, ना। आप दुरुस्त मारे। हल काला खैरा क्या उसने अच्छी बात कही? नाम काला खैरा दिया उसने। हल कालू खैरा क्या उन सब ने अच्छी बात की? नाम कालू खैरा दिया उन्होंने अच्छी। हल कुलतु खैरा क्या आपने अच्छी बात कही? नाम कुलतु खैरा जी हाँ मैंने अच्छी बात कही। हल कुलतुम खैरा क्या आप सबने अच्छी बात कही? नाम कुलना खैरा जी हाँ हमने अच्छी बात की। अब आ जाइए, इसका जो है अमर वो जो है मुदारे देख।
मुदारे चूंकि इन पैटर्न पे आता है, हम चारों के सामने रख के देखेंगे कि कौन सा बनता है। फतहा यफ्तहु से ये बनेगा काला या कालू, नसरा से ये बनेगा काला यकूलू, दरबा से बनेगा काला यकीलू। समिया से ये बन नहीं सकता, क्यों? समिया के लिए जो तीसरे लेटर के नीचे माजी में जेर चाहिए, यहाँ काला के नीचे जेर है ही नहीं, अलिफ खड़ा है, उस पे ना ऊपर जबर है, ना जेर है, ना पेश, तो लिहाजा ये समिया से तो नहीं बनेगा। अब इन तीनों से जब बनेगा तो उसमें दुरुस्त कौन सा है, वो हम अरबों का जो उन्होंने कहा वो खा लेंगे। वो कहते हैं काला यकूलू, तो ये जो है अलिफ को जो है वो क्या है, वाव से बदल दें। यानी तब्दीली क्या हुई, ये जो काला का अलिफ था ना, अलिफ तो असल में आया था वाव की जगह, तो लिहाजा वो वापस आ गया वाव, यकूल, काला यकूल। ठीक है जी। तो आइए, यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं या कहेंगे, तकूलू आप कहते हैं या कहेंगे, अकूलू मैं कहता हूँ या कहूँगा, तकूलूना आप सब कहते हैं या कहेंगे, तकूलू हम सब कहते हैं या कहेंगे, तकूलू वो औरत कहती है। ये जो तकूलू है इसको कहने का एक तरीका ये भी, अंत तकूलू आप कहते हैं तकूलू, या तकूलू वो औरत कहती है। क्योंकि तकूलू दोनों के लिए, ये फर्क करने के लिए मुजक्कर कह रहा है या मुअन्नस, तो उसके लिए सीगे लगा देते हैं, अंत तकूलू या तकूलू, या सिंपली कह देते हैं हिया तकूलू, ताकि ये फर्क पता चल जाए कि ये तकूलू हिया वाला है, वो सामने वाले का तकूलू नहीं है, क्योंकि ये तकूलू दोनों के लिए एक ही आता है, अंत तकूलू या तकूलू, या सिंपली इसे कहते हैं तकूलू, इसे कहते हैं या तकूलू। चलिए जी, आपकी बारी कराइए। हाँ जी, दो हाथ रेज है। चले जी, सिस्टर नाहिद, पहले आपने हैंड रेज किया, आप करा दिए, उसके बाद सिस्टर जी कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेल मुजारे है इसका। यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं या कहेंगे, तकूलू आप कहते हैं या कहेंगे, अकूलू मैं कहता हूँ या कहूँगा, तकूलूना आप सब कहते हैं या कहेंगे, नकूलू हम सब कहते हैं या कहेंगे, हया तकूलू वो औरत कहती है या कहेगी। जी सिस्टर कैसरा खालिद। जी, यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहती हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हिया तकूलू वो औरत कहती है। जी चले, अब आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल, हल यकूलू क्या जवाब होगा? नाम लो। अम यकूलू, हल यकूलूना अब क्या जवाब होगा? न अम नअम यकूलूना, यकूलू, हल तकूलू, नअम अकूलू, नहीं हल सॉरी, तकूलूना। नाम नकूलू। गुड, एक्सीलेंट। अब अमर देखें, अमर में काला यकूलू, चूंकि अमर जो है वो मुदारे से बनता है, यकूलू है इलामत मुदारे, या हटाई तो क्या हो गया, काफ वाव लाम रह गया, आखिरी हरफ को जो है सुकून देते हैं, ये देखें, यानी या को हटाया, आखिरी हरफ को सुकून दिया, तो पीछे क्या बन गया, काफ वाव लाम। अब वाव है कमजोर हरफ, अमर बनाते हुए ज्यादा तर ये होता है कमजोर हरफ खिसक जाता है, कि ये हुक्म मिलने वाला है, बोझ पड़ने वाला है, वो पहले ही कमजोर है, वो गायब हो जाता है, तो पीछे क्या जाएगा, कुल रहेगा। अब कुल जो है ये पढ़ा जा रहा है, जब पढ़ा जा रहा है तो यहाँ हमजा नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे इकुलू आरा कुलू, हम इसे कुल ही कहेंगे। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत, यानी ये अमर और नहीं में आखिरी लफ्ज साकिन होता है, सवाए चंद एक खास खास टेबलों में जहां वो आएगी हरकत वो हम देखेंगे। आइए इसकी अरबी बोलचाल, कुल कह तो क्या आएगा, अकूल, कुलू तुम सब कहो, क्या होगा, नकूल, ला तकुल तुम मत कह, तो वो क्या कह, ला नकुल, ला तकुल तुम बस कहो, ला नकुल बनते। तो आइए, कुल खैरा कह अच्छी बात, अकूलू खैरा मैं अच्छी बात, कूलू खैरा तुम सब अच्छी बात कहो, नकूलू खैरा। तो आइए फाइल देखते हैं क्या होता है, कायल कहने वाला, मकौल जो कहा गया, कौल कह। तो आइए, हल अंत कायल क्या आप कहने वाले हैं? हाँ माना कायल, जी हाँ मैं कहने वाला।
हल अंतुम कायलून, क्या आप सब कहने वाले? नाम नाहनु कायलून, जी हम सब कहने वाले। अब पूरा टेबल आ गया आपके सामने, जी दोहराइए, कौन दोहराना चाहेगा? जी सिस्टर कैसरा, आपने हैंड रेज़ किया, आप कराइए। जी, कौला उसने कहा, कौलू, अच्छा सारा करवाऊं या लास्ट वाला करवाऊं? चले आप जो है माजी का करा दीजिए, बाकी और से करा दो। अच्छा से कौलू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुल तुम मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कौलत उस औरत ने कहा। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुल ता आपने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा। कि मुदारे का जो है आप करा दीजिए सिस्टर नाहिद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, हैया तकूलू वो औरत कहती है। जी ब्रदर करीम, आप जो है अमर नहीं और फाइल मफूल करा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो, काइलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, कौलुन कहना। सर मेरे यहाँ पे एक सवाल है, ये जो जी हम माजी, ये काला है, जब हम इसका माजी वाला टेबल बनाते हैं तो ये काला एज इट इज चलेगा, काला कालू कुलता, बाकी चीजें भी काला हमने उसी तरह से इसको काला कालू, और वहां पे जब हम मुजारे में गए तो उसको वो हमने उस पैटर्न में लाया और फिर उसको उस पे जो फिट होता था वो करता था। इसी तरह है ब्रदर कि ये जो माजी का टेबल होता है वो जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसमें चलता है, और जबकि मुदारे के अंदर जो है इलामत मुदारे लगती है और जो है आखिरी लफ्ज पे पेश लगा के चलते हैं। जहां नहीं लगता वहां पे बताते हैं कि यहाँ पे जो है जबर से चलेगा या किससे चलेगा। इसी तरह से हम जब कुल में गए फेल अमर बनाया तो वहां पे हमने वो कमजोर और वाव जो है उसको ड्रॉप कर दिया, तो हमने ये फिर सिर्फ कमजोर हरूफ में होता है, कमजोर हरूफ में ऐसा ही होता है कि अक्सर अक्सर जो है कमजोर हरफ गिर जाता है और कभी कभी नहीं भी गिरता है। इसीलिए ये टेबल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, सब कराए जाते हैं ताकि वो पैटर्न जो है हमें आ जाए कि किस टेबल में कौन सी चेंजेस होती है, वरना अच्छा एक ही टेबल काफी था सबके लिए, ठीक है। ये इतने टेबल में कराने की जरूरत नहीं थी। एक और है कि मैं इसको नसरा से कर रहा हूँ, इट इज अबाउट नसरा, काला यकूल जी कुल। हाँ, ये नसरा के पैटर्न पे काल नसरा यनसुरु होता है, नसरा यनसुरु। लेकिन इसमें जब ये कमजोर हरफ अलिफ आ जाता है ना, तो ये नसरा की बजाय काला यानी आ जाता है, इसमें वो तीसरा जबर गायब हो जाता है। और यनसुरु जो है, यनसुरु वो जो है यकूलू जो है उस पे फिट बनता है। ठीक ठीक। अच्छा अब ये काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कुल कह कायल कहने वाला, मकूल जो कहेगा, कौल कहना। तो अरबी बोलचाल, तुम सब लोग सब कहो लोगों से अच्छी बात, तुम सब कहो कूलू लोगों से अन्नास खैरा अच्छी बात। इन अल्लाजीना कालू रब्बुल्लाह, इन्ना बेशक अल्लाजीना वो लोग जिन्होंने कालू कहा रब्बुना रब है हमारा, अल्लाह अल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है। हल कुल तुम खैरा, तुम जो है वो ना की तरफ जाएगा, नाम कुलना खैरा। ताबा जो है वो एक काला के पैटर्न पे होता है, ताबा ताबू तुक्ता तुक्तू तुक्तू तुबना ताबत, यतूबू यतूबूना ततूबू अतूबू ततूबूना नतूबू ततूबू तुबू ला ततूब ला ततूबू ताइबुन मतूबुन इलैहि तौबतुन। इसका मफूल नहीं होता, इलैहि के साथ आता है, अगर आए मतूबुन इलैहि। तो ये जो है इसका पूरा टेबल है, तो इसको सिर्फ हम बगैर तर्जमे के वक्त की कमी से करेंगे। ताबा ताबू तुक्ता तुक्तू तुक्तुम तुबना ताबत, यतूबू यतूबूना ततूबू अतूबू ततूबूना नतूबू ततूबू तुब तूबू ला ततूबू ताइबुन मतूबुन इलैह और तौबत। आज हमने जो पढ़ा वो क्या था, काला यकूल, और इसके इसलिए कौन सा पढ़ा था, ताबा यतूब, आखिर में हमने प्रैक्टिस किया।
تو آج کا ہمارا یہ اسماء مسئولہ دیکھیے جو آپ کو پہلے سے آتے ہیں. مذکر میں آپ نے پڑھا ہے اللہ زی، پتہ ہے نا اللہ زی وہ، اور اس کی جمع کیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اللہ زینا، یہاں تک تو ہے نا. مؤنث کا کیا ہوتا ہے اللہ، اور جمع ہوتا ہے اللہ اور اللہ، اس کی دو تھے. اب یہ درمیان کا صیغہ جو ہے دو آپ نے یاد کرتے ہیں، کون سا ہے؟ مثنیٰ اس میں کا اللہ زی کی جمع، اللہ زی کا مثنیٰ ہوگا اللہ زان، یعنی دو، وہ دو. اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ تعالی. ان 6 میں سے 4 آپ کو آلریڈی آتے ہیں، اللہ زی، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تی یا لاتی، یہ آپ کو پتہ ہے. صرف 2 نئے ہو گئے، کیا اللہ زانے، اللہ تعالی. تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے اپنے اس میں جو ایسے امپورٹنٹ ورڈ ہیں، اور ان کو جو ہے روزانہ ایک نظر دہرائیں تو انشاءاللہ یہ پکے ہو جائیں گے. یہ اس کی جو ہے پوری سلائیڈ ہے. یعنی واحد اللہ زی کا مطلب ہے یہ وہ جو، جس کو، جس نے، جس سے، یعنی ایک مذکر کے لیے آتا ہے. اسی طرح اللہ زانے جو ہے یہ وہ جو، جن کو، جن نے، جن سے، یعنی 2 مذکر کے لیے ہوتا ہے. اللہ زینا یہ وہ جو، جن کو، جن نے، جن سے، یعنی جملے کے مطابق ان میں سے کوئی بھی لفظ آ سکتا ہے، اور یہ سب مذکر کے لیے. اور مؤنث کے لیے جو ہے واحد کیا ہوتا ہے اللہ تی، اس کے بھی یہ وہ جو، جس کو، جس نے، جس سے، جو وہ ترجمہ فٹ ہو رہا ہو وہاں پہ وہ لفظ لگا دیتے ہیں. اور تسنیہ میں اللہ تعالی یہ وہ جو، جن کو، جن نے، جن سے، یعنی 2 مؤنث. اور الاتی یا الائی یہ وہ جو، جن کو، جن نے، سب سے. تو یہ اس کا ترجمہ ہے. یعنی کہیں پہ یہ وہ جو، جس نے، جس کو، جس نے، یہ جو بھی لفظ فٹ ہو رہا ہو ترجمے میں وہ فٹ کر دیتے ہیں. صرف فرق ہے اللہ زی 1 کے لیے، اللہ زانے 2 کے لیے، اللہ زینا 3 کے لیے، یا سوری 2 یا 2 سے جو زیادہ ہے جمع کے لیے، اور یہ مذکر کے. مؤنث کے لیے اللہ تی واحد، اللہ تعالی مثنیٰ یعنی تثنیہ 2، اللہ تی یا الہی یہ جو ہے جمع. تو سوالات کم ہے، صرف دیکھ لیجیے. یؤمنون بالغیب، وہ سب ایمان رکھتے ہیں غیب پہ. رزقناہم، ہم نے دیا انہیں، وہ سب خرچ کرتے ہیں اچھے کاموں میں. یعنی یہ پہلے 3 جو ہے درست ہے. من قبلی کا، تم سے پہلے متقینوں کی صفات یہ 4 تھی. من ربہم، ان سب کے رب سے ہدایت ہے، سب صحیح ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ایک قیمتی طرف ہے. برائیوں کی جو ہے اندھیروں میں روشنی اور کامیابی کا ذریعہ. صلات کی جمع صلوات ہوتا ہے. رزقہ سے اسما کی 3 چابیاں، رازق، مرزوق، رزق. رزقو سے جو ہے مضارع کیا ہوتا ہے یرزقونا. توبہ جو ہے اس نے توبہ کی. حل تبتو اللہ کا مطلب ہے نام تبنا اللہ. نقول، ہم کہیں گے یا ہم کہتے ہیں، تم سب توبہ کرو گے. تتوبونا، حل تقولو خیرہ، نام اقولو خیرہ. قولو آمنا، کہو ہم ایمان لا چکے. وتوبی اللہ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سے. حل انتم قائلون، نام نحنو قائلون. قالا سے اسما کی چابیوں کو تھا قائل، مقول، قول. تابہ سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی، تابہ یا تب. تو آپ جو ہے اپنے ساتھ ہوم ورک جانتے ہیں. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سسٹر ناہید، آپ نے ہینڈ ریز کیا کہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ ان کا جو مادہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہم مضارع سے لیں گے کیا؟ جیسے یقولو میں قاف، جی واو اور امر لام. ہمیشہ مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع میں بھی سامنے والے کے صیغے سے بنتا ہے. لیکن ڈاکٹر عزیز نے کہا یار وہ چھاٹ کر کرو، یعنی سامنے پہلا جو صیغہ یقولو بنتا ہے یا جو ہے جو بھی بنتا ہے نا اسی سے بنا دو. یہ شارٹ کٹ ہے، ادروائز سامنے والے تقول ہے. اور سر اس کا ہمیشہ ایک، امر جو ہے وہ مضارع سے بنے گا. سر ایک کوشچن چھوٹا سا، اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ ان وعد اللہ حق. اللہ اللہ کے معنی ہے خبردار. یہ آئیں گے الفاظ جو حروف ہم نے پڑھے ان میں یا تو یہ گزر چکا ہے یا آئے گا. حروف جو ہم نے 2 شروع کیے تھے، ہم نے ابھی باقی حروف بھی پڑھنے ہیں، ان میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. سوالات نوٹ کر لیجئے کل کے لیے.